वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਕਿ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਡ ਬਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੀਨ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਬਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਨ ਵਟ ਦਾ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜੇ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਜਾਂ 10% ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਰਿਟਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7% 8% ਰਿਟਰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ 5% 7% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰਿਟਰਨ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਪਲਾਇਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਓਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 7% ਰਿਟਰਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ 10% ਕਮਾ ਲਈ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਕਮਾ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਟਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨੋਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲਾਇਡ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਕਰਕੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ
प्रॉफिट जिहड़ा वो निकल आएगा। जिहड़ा डिफरेंस तुहानूं मैं दस्सिया सी कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तुहाडे कोल जो भी निकल के आएगा वो की निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। फिर उस तो बाद तुहाडे कोल आ जांदी है गुडविल। गुडविल कड्ढण दा फार्मूला की है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि तुहानूं ऑलरेडी गिवन जिहड़ी आ वो हुंदी उहनूं आपां कहने आ गुडविल। ਹੁਣ ਪੁੱਤ आ हैगा सी तुहाडे कोल मैथड्स बड़ा सौखा वा तो इंपॉर्टेंट भी इनू ध्यान च रखना। आप एक एग्जाम्पल लैके वेखते तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी होएगी कि उन्हें लिखा नैट प्रॉफिट अर्निंग बाय अ फर्म द लास्ट 3 ईयर कितना दिता वा 22,000 25,000 ते 25,000। ਇਹਦਾ मतलब आ 3 सालों का प्रॉफिट दिता तो आप ये बेस ते एवरेज प्रॉफिट कर सकते हैं। फिर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म कितना वा 60,000 60,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट जी की गई है इंप्लॉयड की गई है। रिटर्न जी दी गई है रिस्क इनवॉल्वड 12% दी गई है। रिस्क इनवॉल्वड का मतलब है वा कि आप जो भी किते पैसा लाने तो पैसा जो भी किते इन्वेस्ट करांगे उस रिस्क का तो चांस जो रहिंदा ही रहिंदा। तो रिस्क इनवॉल्व जो भी तुहानूं लग भी दिता होवे तुसीं उहनूं इनकलूड करके ही लैके चलना। रिस्क इनवॉल्व तुहाडे कोल दिता वा टोटल रिटर्न जी आ 12% दी है। जिन्नी तुसीं इंप्लाय करते पे हो कैपिटल वो बल्ले रिटर्न तुहानूं दिंदा पिया वो 12% कि जे मैं लाख रुपया लाना तो 12% मिलेगा। हुण इत्थे मैं 60 लाई तो मैनूं कितनी रिटर्न मिलती पई है 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज। किन्ने ईयर ऑफ परचेज उन्हें कहा था तुहानूं 3 ईयर ऑफ परचेज। हुण इहदे विच की आ फार्मूला की है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट दोवां चों जिहड़ा प्रॉफिट दिता वो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट नूं कड्ढण वास्ते सानूं जो कैपिटल इंप्लॉयड की गई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नाल मल्टीप्लाई करांगे तो नॉर्मल प्रॉफिट जिहड़ा वो आ जाएगा। आप एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो तुहाडे कोल दिता होया सी इन्हें एवरेज प्रॉफिट कड्ढना। एवरेज प्रॉफिट कितना कड्ढोगे तुसीं 22,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय रेलेवेंट ईयर किन्ने दिते ने 3 तिन्हां दा टोटल किया 72,000 आ गया। 3 नाल डिवाइड किया तो कितना आ गया 24,000। ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। हुण नॉर्मल प्रॉफिट कड्ढना वा कैपिटल इंप्लॉयड नॉर्मली कितनी दी है 60,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% हिसाब नाल कितना निकल आया नॉर्मल प्रॉफिट 7200। एवरेज प्रॉफिट दिता वा तुहानूं 24,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7200। तो सुपर प्रॉफिट की हुंदा एक्सैस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोवां दा डिफरेंस होएगा वो कितना आ गया 16,800। इसदा मतलब 7200 रुपया नॉर्मली आपां कमाना सी मगर इस साल आपां कितना प्रॉफिट कमाया वा एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया आपां 24,000। तो दोवां दा डिफरेंस 16,800 आपां सुपर प्रॉफिट जिहड़ा एक्सैस प्रॉफिट जिहड़ा वो कमाया। सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। गुडविल का फार्मूला का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज वो किन्ने दिते तुहानूं 3 ते तुहाडे कोल कितना आ गया 50,400। तो ये निकल आया तुहाडे कोल सुपर प्रॉफिट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनू ध्यान च रखना बड़ा ईजी भी है पेपर च कई वेले जिहड़ा वो आ जांदा। वो तो नैक्सट जिहड़ा मैथड हैगा वा वो मैथड हैगा कैपिटलाइजेशन मैथड। कैपिटलाइजेशन मैथड मतलब कि तुसीं जो भी पैसा बिजनेस च इन्वैसट करदे पे हो जिन्ना भी पैसा ला रहे हो ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब जे लाख रुपया बिजनेस चलाया तो 7,000 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए सी मगर जे मैं प्रॉफिट जोड़ा कमाया वो मेरा 10,000 हो गया तो 10,000 के बेस दे फिर मेरी कैपिटल होए नहीं कितनी चाहिए आ उन्होंने कैलकुलेट करने वास्ते मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू जी कैलकुलेट करके वेखदा वा कि मेरी जी वैल्यू तो प्रॉफिट निकलता पिया वा वो इन्नी कैपिटल वैल्यू जी वो बनती पई कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनती पई आ। कमाना मैनू घट चाहिए सी जिन्नी कि कैपिटल आई वो मुताबिक मगर मैं ज़्यादा कमा रहा वा तो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जी मार्केट दे विच बनती पई किन्नी बनती पई उन्होंने कैलकुलेट आपां कर दिओ। कैपिटलाइजेशन मैथड की हुंदा वा कहंदा इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कि जिन्नी तुसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फर्म दे विच जिहड़ी लाई आ जिन्नी उहदी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिहड़ी बनदी आ एंड नैट एसेट ऑफ द फर्म। नैट एसेट का मतलब है कैपिटल इंप्लाइड। ਇਹਦਾ मतलब कि आ गया कैपिटल इंप्लाइड। इनू मैं कड्ढण का तरीका तुहानूं दस्सिया सी एसट साइड के उत्तों जिन्नियां भी तुहाडे कोल करंट एसट्स ने इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसट्स एक्सैप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ते फिक्टिशियस एसट उन्होंने छड्ड के जिन्नी भी तुहाडे कोल एसट्स बचदियां उहदे विचों जे आउटसाइडर लाइबिलिटी नूं माइनस कर दिए तुहाडे कोल नैट एसट्स जिहड़ियां वो जो भी बचदियां वा उहनूं कैपिटल इंप्लाइड भी कहंदा। इहदा मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कि जो प्रॉफिट आपां एक्चुअल च कमाना चाहिए सी उन्होंने ज़्यादा जिहड़ा प्रॉफिट कमाया उहदे बेस ते जिन्नी एक्चुअल
कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनती पई आ ते जिन्नी एक्चुअल च कैपिटल इंप्लॉयड लाई सी दोवां दा डिफरेंस जिहड़ा वा तुहाडी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिहड़ी आ वो बनती है। हुण इहनूं कड्ढण दे दो तरीके ने, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सानूं कड्ढना आंदा ते कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी सानूं कड्ढना जिहड़ा वो आंदा वा। हुण कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिहड़ा वा उहनूं कड्ढण दा फार्मूला उहनूं की मतलब की है उहदा, कहंदा अकॉर्डिंग टू दिस मैथड गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, कि जिन्नी तुसीं एक्चुअल च कैपिटल इंप्लॉयड करदे पे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा जिहड़ी वैल्यू निकल के आंदी पई आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कह दिंदे आ गुडविल। कि ਆਪਾਂ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिहड़ा वा जेकर वो ज़्यादा बनती पई है एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड दे नालों तो दोवां दा जो भी डिफरेंस निकल के आएगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ की कहांगे गुडविल। मान लो कि जे मैं गल करदा पिया वां कि मैं 1 लाख रुपया कैपिटल इंप्लॉयड लाई 7% के हिसाब नाल मेरे को 7000 रुपया प्रॉफिट जो आना चाहिए सी, मगर मैं जो प्रॉफिट एक्चुअल च कैलकुलेट करना शुरू किया तो मेरा प्रॉफिट जो निकलता पाया एवरेज वो निकलता पाया 10,000 रुपया। हुण 7,000 के मुताबिक तो मैनूं कैपिटल इंप्लॉयड का पता वा, मगर 10,000 के मुताबिक जो प्रॉफिट जो ज़्यादा निकला वो मुताबिक कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैनूं फिर कड्ढनी पेगी कि मेरी एक्चुअल च इन्नी कैपिटल लगती तो इन्ना प्रॉफिट जो मिलना चाहिए सी, मगर मेरी इन्नी कैपिटल इन्ना मिलता पाया वा, मगर मैं प्रॉफिट कमा लिया वा ज़्यादा, तो वो किन्नी वैल्यू जी होनी एक्चुअल चाहिए कैपिटलाइज्ड की उन्होंने कैलकुलेट करांगे। ये बेस से जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी तो आ जी कैपिटल इंप्लॉयड आ इन्होंने दोवां का जो भी डिफरेंस निकलता पाया वा उन्होंने आप की कह देंगे गुडविल कह देंगे। तुसीं एग्जाम्पल करोगे तो तुहानूं क्लैरिटी जी हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जे कड्ढना वा तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू के मुताबिक जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कड्ढनी आ तो एवरेज प्रॉफिट के बेस के उत्ते जो भी एवरेज प्रॉफिट तुहानूं दिता वा जां तुसीं कैलकुलेट किया वा उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगे तुसीं जो नॉर्मल प्रॉफिट कढ़दे सी तो कैपिटल इंप्लॉयड नूं मल्टीप्लाई करदे सी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100, मगर हुण आपां उल्ट करना वा क्योंकि आपां अगे सानूं कैपिटल इंप्लॉयड दित्ती हुंदी सी ते आपां प्रॉफिट कड्ढदे सी नॉर्मल प्रॉफिट कढ़दे, हुण सानूं प्रॉफिट दिता होया वा ते आपां कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटलाइजेशन वैल्यू करनी है तो सानू करना पेगा उल्ट। तो एवरेज प्रॉफिट किहदे इक्वल कितना आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुना 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप फार्मूला लावांगे ये बेस पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी तुहाडी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जी निकल के आएगी। तो कैपिटल इंप्लॉयड जी है वह मतलब होंदा वा टोटल एसेट्स एक्सैप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो तुहाडे कोल की निकल आती है कैपिटलाइज्ड कैपिटल इंप्लॉयड। इन्हां दोवां दा जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो तुहाडे कोल गुडविल निकल के जी वो आएगी। एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब की आ गया जो भी तुसी एवरेज प्रॉफिट कमाया उन्होंने 100 ना मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकलती है जिन्नियां भी एसेट्स दित्तियां ने गुडविल छड्ड के फिक्टिशियस एसेट छड्ड के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छड्ड के और आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तुहाडे कोल कैपिटल इंप्लॉयड जी वो निकल आती है। एग्जाम्पल करोगे तुहानूं ज़्यादा समझ जी लगे। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म आ जी कि 60,000 एनुअल प्रॉफिट जोड़ा वा कमा रही आ 60,000 एनुअल प्रॉफिट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किन्नी आ 10%। ਇਹਦਾ मतलब 60,000 रुपया एनुअल प्रॉफिट कमाती पई आ तो नॉर्मल रेट है वा 10%। एसेट ऑफ द फर्म दी हुई है 7,20,000, मतलब एसेट्स दी 7,20,000 तो लाइबिलिटी जी दी हुई है दी हुई 2,40,000। यदा मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी भी दी है तो एसेट भी दी है। जो आप एसेट्स के टोटल के विचों आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो तुहाडे कोल कैपिटल इंप्लॉयड जी या नैट एसेट्स ऑफ फर्म जी निकल आती है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हुण एवरेज प्रॉफिट के बेस पर तुसीं कैपिटलाइजेशन वैल्यू जी वो कड्ढो। हुण तुहानूं एनुअल प्रॉफिट दिता होवे एक्चुअल प्रॉफिट दिता होवे एवरेज प्रॉफिट दिता होवे वो सेम ही आ। जे तो एवरेज प्रॉफिट ना तुहानूं नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट दिते फिर एवरेज कड्ढोगे, नहीं तो इहो चीज़ तुहाडी एवरेज है इहो तुहाडी एक्चुअल है इहो तुहाडी एनुअल आ। हुण 60,000 प्रॉफिट जिहड़ा तुसीं एनुअल कमा रहे हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किन्नी आ 10%। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना तुसी प्रॉफिट कमा रहे हो वो तुहाडा 10% के बराबर आ। मगर जेकर आप वेखना चाहे कि जो 60,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बेस से साडी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू किन्नी है कि आप किन्नी कैपिटलाइज्ड की होगी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करना। जो भी तुहाडे कोल एवरेज प्रॉफिट होएगा उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे 100 के नाल डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाल तो तुहाडे कोल टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जी आ फर्म निकल के आ जाएगी। मतलब कि तुसी 6 लाख रुपया जोड़ा वा कैपिटलाइज्ड
वैल्यू फर्म की तुहाडी बनदी आ, जिहदे बेस दे उत्ते तुसीं 10% रिटर्न जिहड़ी आ 60,000 रुपया प्रॉफिट दी कमा रहे हो एक्चुअल प्रॉफिट दी। ते तुहाडी जिहड़ी कैपिटल इंपलाइड जिहड़ी नैट कीती गई वो कीती गई 4,80,000। किस तरह की कढ़िया आपां टोटल एसैट्स माइनस करंट जो भी तुहाडे आउटसाइडर लाइबिलिटियां दित्तियां वा तुहाडे को आ गया नैट एसैट्स ऑफ फर्म, इनू आपां कहने आ कैपिटल इंपलाइड। ये की तुहाडी कैपिटल इंपलाइड, ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये आ गई कैपिटल इंपलाइड। इन्हां दोवां दा जो भी डिफरेंस होएगा वो तुहाडी की निकल के आंदी आ गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती पई है बिजनेस की 6 लाख रुपया, कैपिटल इंपलाइड निकलती भी 4,80,000 रुपया। तो दोवां दा डिफरेंस जिहड़ा निकलदा पिया की निकलदा पिया वा गुडविल वो निकलती भी 1,20,000 रुपया। कहण तो भाव कि तुसीं जिन्ना एक्चुअल प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ 10% ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10% ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। तो जे आपां नूं 100% के बराबर करना वा तो आपां इनू की करांगे, फिर आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेख लीए तो तुहाडे कोल जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिहड़ी वो निकल के आएगी कि आपां 6 लाख रुपया कैपिटलाइज्ड फर्म की वैल्यू बनती पई आ। 10% के हिसाब नाल आपां 60,000 रुपया प्रॉफिट जिहड़ा वो एनुअल कमा रहे हैं। वो बेस ते मेरा मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन्नी 6 लाख रुपया निकल आई। तो नैट जिहड़ी कैपिटल इंपलाइड की गई है वैल्यू जिहड़ी वो ज़्यादा वा, मगर इंपलाइड जिहड़ी की गई सिर्फ 4,80,000 की गई। दोवां दा डिफरेंस है वो की निकल के आएगा तुहाडे कोल गुडविल निकल के आएगा। ये आ गया तुहाडे कोल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड। ये याद रखना वा तुसीं कि तुहानूं कैपिटल इंपलाइड कड्ढनी पेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कड्ढनी पेगी, दोवां दा फिर डिफरेंस लोगे तो फिर गुडविल जिहड़ी आ वो आएगी। क्योंकि आ जिहड़ा प्रॉफिट आ एवरेज आ ये ज़्यादा वा एक्सैस आ। एक्सैस वाली चीज़ दे विचों जो एक्चुअल चीज़ आपां लाई उन्होंने माइनस करके फिर जो निकलेगा तुहाडे कोल वो डिफरेंस की निकलेगा गुडविल। हुण अगे आ जांदा वा तुहाडे कोल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। हुण एवरेज प्रॉफिट जिहड़ा वा ਉਹਦਾ ਤੇ नॉर्मल ਦਾ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सुपर प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ सुपर प्रॉफिट मैथड ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सुपर प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ डिफरेंस बिटवीन एवरेज ਐਂਡ नॉर्मल ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ डिफरेंस ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ नॉर्मल ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ सुपर ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ instead of calculating the capitalized value of business, capitalization value of super profit is calculated, the value of goodwill is calculated as follow। कहता पिया वा कि अंडर दिस मैथड जो आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कढ़नी आ तो आप जगह तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट करांगे। जो कैपिटलाइज ऑफ वैल्यू कढ़नी आ वो बेस आप किनू यूज़ करते पे सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल जी ये निकलती आ आप जितना एवरेज प्रॉफिट में पहलों मल्टीप्लाई करते ही 100 के नाल, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ਕੱਢਦੇ ਹੀ, फिर उस कैपिटलाइज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਂਗੂ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ किन्नी गुडविल जी बनती है। एग्जाम्पल करते तुहानूं समझ लग जाएगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,60,000 तुहानूं ऑलरेडी कैलकुलेट करके एवरेज एक्चुअल एनुअल दिता है 1,60,000। टैंजीबल एसैट्स दित्तियां होईयां ने 15 लाख। करंट एसैट्स फिक्स एसैट्स उन्हां विच गुडविल जिहड़ी नहीं हैगी तां ही उन्होंने आपां टैंजीबल एसैट्स कहने पे। वो दित्ती 15 लाख ते आउटसाइड लाइबिलिटी दित्ती 4,20,000। हुण टैंजीबल एसैट्स दे विच्चों दी जे आउटसाइड लाइबिलिटी नूं आपां माइनस कर दईए ते तुहाडे कोल निकल के आंदी है कैपिटल इंपलाइड। हुण कैपिटल इंपलाइड तुहाडे कोल निकल आई। नॉर्मल प्रॉफिट कड्ढण वास्ते नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्हें तुहानूं दित्ती है 10%। हुण कैपिटल इंपलाइड तुहानूं पता वा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुहानूं पता वा, तुसीं इहदे बेस ते नॉर्मल प्रॉफिट जिहड़ा कढ लोगे 1,08,000। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हैगा वा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुहानूं दित्ता वा 1,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट तुसीं कढ लिया 1,08,000 तो तुहाडे कोल डिफरेंस की निकल आंदा वा सुपर प्रॉफिट का 52,000। हुण सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी एक्सैस हैगा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100/10, ਮਤਲਬ 100 ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ